Hello everyone, this is A. Mani Sharma and you are watching Percentage and its Applications from Standard 6 of DAV Public Schools. In this video, we shall see Worksheet 3, question number 1 to question number 4. Question number 1. Find gain or loss percent. We have to find gain or loss percent. So see here, CP is given rupees 900, CP is given rupees 900 and SP is given rupees 1080. Question number 1. A. So here let us see the solution for A. What is given? CP is equal to rupees 900. मतलब सामान 900 रुपया में खरीदा गया. SP is given rupees 1080. देखो खरीदा है 900 में और बेचा है 1080 में. तो यहाँ पे CP is less than SP, isn't it? मतलब कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? We shall get profit. यहाँ क्या हो गया? Profit. Profit will be equal to SP minus CP. SP कितना है? रुपीज 1080 माइनस CP कितना है? रुपीज 900. सो आंसर विल बी इक्वल टू रुपीज 1080 माइनस रुपीज 900. देखो तो कितना होगा? 081 रुपीज 180. नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हो गया? 900 रुपीज CP था तो प्रॉफिट हो रहा था 180. तो अगर 100 रुपीज CP रहेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है पर 100 आपको कितना फायदा हुआ, ये निकालना है. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, या फिर इसको हम लोग सीधा 900 बाय 100 इज इक्वल टू 180 बाय अननोन नंबर डाल के भी निकाल सकते हैं. सो लेट अस राइट the formula how to find profit percent. Now profit percent will be equal to profit by CP into 100. प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 180. तो 180 और CP कितना है? 900 into 100. So 1020 cancel it with this. 9 ones are 9, 9 twos are 18 and 0. So प्रॉफिट परसेंट इज नथिंग बट 20%. तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%. सो व्हाट इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन वी हैव गेन ऑफ 20%. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन चिल्ड्रन, let us see the next question. B. Here CP is given which is equal to rupees 2400. CP कितना है? 2400. SP is equal to rupees 2250. देखिए अब ध्यान से, CP 2400 है, SP 2250. मतलब क्या है? ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा. तो क्या हो जाएगा? लॉस. हियर CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. यहां लॉस कितना हो जाएगा? लॉस विल बी इक्वल टू रुपीज 2400 माइनस रुपीज 2250. इजंट इट? अब यहाँ पे माइनस करके चेक करो कितना आ रहा है? 2400 माइनस 2250. देखिए तो कितना हो रहा है? 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0. सो रुपीज 150. लॉस कितना है? रुपीज 150. See here, if the CP is 2400, loss is 150. Now you have to find loss percent. That means you have to find how much loss you are getting for rupees 100.
If the CP is rupees 100, then what will be the loss? So loss percent will be equal to loss by CP multiplied by 100. Now loss is 150 divided by CP is 2400 into 100. So these 2 0 gets cancelled with these 2 zeros. Now simply 3 8s are 24 and 3 50s are. Now 50 by 8. So this can be cancelled. 2 4s are 8 and 2 25s are 50. So 25 by 4%. Isn't it? 25 by 4%. Now what is 25 by 4%? 25 by 4% means 6 1 by 4%. So what is the loss in the second question? It is loss is in the second question loss is 6 1 by 4%. CP is equal to rupees 750. And what is your SP? SP is equal to rupees 850. Now see children, SP is greater than CP. यहाँ क्या हो रहा है? SP बड़ा है CP से. That means कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा. तो क्या हो जाएगा? Profit. Profit is equal to rupees 850 minus rupees 750. So that will be equal to सीधा दिख रहा है ना 850 में 750 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 100. नाउ प्रॉफिट परसेंट ए में हम लोग निकाले थे ना प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100. सो प्रॉफिट कितना है 100, सीपी कितना है 750 इंटू 100%. एक जीरो तो हियर 25 4s are 100 and 25 3s are 75. Now this is 40 by 3%. 40 by 3%. 40 by 3 का क्या मतलब हो गया देखिए 3 12s are 36, 3 13s are 39. 13 1 by 3%. Okay. Now let us see the next question. See in D, what we have in D, CP is equal to rupees 10,200. CP is equal to rupees 10,200 and SP is equal to rupees 8,670. See here children, CP is greater than SP. CP क्या है? SP से बड़ा. मतलब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा. इसका मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया. So loss will be equal to CP minus SP. अब CP में से SP माइनस करो कितना आ रहा है रुपीज 10,200 माइनस रुपीज 8,670. रिस्क नहीं लेना है, साइड में डाल करके माइनस करके चेक कर लो. ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे गलती हो जाएगा. 0 minus 0 0. नाउ 10 minus 7 3, 11 minus 6 5, 9 minus 8 1. सो रुपीज 1,530. ये क्या है? दिस इज लॉस. नाउ लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? ये लॉस हमारा कितने पर है? 10,200 पर 1,530 लॉस है तो 100 पे कितना होगा? इसका मतलब लॉस परसेंट निकालना है. सो लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस बाय CP into 100. Now see 2 zeros and 2 zeros gets cancelled. Now see 102 1530 divided by 102. चलिए इसको हम लोग डिवाइड करके चेक कर ले. Now let us divide 1,530 by 102. देखिए अब क्या मिलेगा इसमें हम लोग को. सबसे पहले 1s are 102 1s are 102. 3 minus 2 1, 5 minus 0 5 0. यहाँ देखिए 5 है. सो 5 टाइम्स चेक करिए. 5 2s are 10 0 1, 5 0 and 1 1, 5 1s are 5. So nice. 15. Okay. So 102 1s are and 102 15s are 1,530. So loss is equal to 15%. So here in the fourth sum we got loss of rupees 15 per 100. इसको रीड करिए. अ शॉपकीपर बाइज 30 चॉकलेट बार्स एट रुपीज 15 ईच. देखिए एक शॉपकीपर ने 30 चॉकलेट खरीदे. एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज. ठीक है. एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम फॉर रुपीज 525. अब सारे चॉकलेट्स को 525 में बेच दिया. फाइंड प्रॉफिट परसेंट ही मेड. देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना है? सीपी ऑफ 1 चॉकलेट कितना है? एक चॉकलेट कितना में खरीदा? रुपीज 15 है ना.
नाउ सीपी ऑफ कितना खरीदा है, 30 चॉकलेट्स खरीदा है, तो सीपी ऑफ 30 चॉकलेट्स कितना हो जाएगा, ₹15 इंटू 30 है ना, तो कितना हो जाएगा 15 3 45 मतलब ₹450. नाउ व्हाट इज द एसपी, एसपी ऑफ ऑल चॉकलेट्स, एसपी ऑफ ऑल चॉकलेट्स मीन्स एसपी ऑफ ऑल 30 चॉकलेट्स कितना हो गया, कितना दिया हुआ है 525 रुपीज 525. अब देखिए तो ये सीपी है और ये एसपी है, सीपी बढ़ा के एसपी, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसका मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, सो प्रॉफिट इक्वल टू 525 माइनस 450, और ये किस में आएगा, रुपीस में आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 525 में से 400, सबसे पहले 500 में से 400 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 100, तो 125 में से 50 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ₹75. एम आई राइट, चेक कर लीजिए तो 450 प्लस 75 करके 450 प्लस 50 करिएगा 500, फिर बच गया 25 प्लस 25, सो 525, वी आर करेक्ट. ₹75 हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितना पर, सीपी कितना था 450, तो प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट that is 75 by CP is 450 into 100. So 10 कट गया, 5 9s are 45, 5 2s are 10, 3 3s are 9, 3 25s are 75. So again you are getting 50 by 3%. 50 by 3% का मतलब क्या हो जा रहा है, 3 16s are 16 3 48. So 16 2 by 3%. कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, आंसर क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 2 by 3%. ओके, अ मैन बाइज अ रेडियो सेट फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹972. ध्यान से देखो, 900 रुपीज में खरीदा और 972 में उसको बेच दिया. व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, सिंपली सी सीपी ऑफ द रेडियो सेट, कितना में खरीदा, equal to ₹900. What is the SP? SP of the radio set, कितना SP 972. सामने देख के पता चल रहा है ना, CP और SP को देखो, which one is bigger, SP is bigger, so SP is greater than CP, मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, so profit equal to SP minus CP. तो कितना हो रहा है यहाँ पे, ₹972 माइनस ₹900, कितना आ रहा है बच्चों, 72 रुपीज. ओके, सो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी कितना है 900, सो 72 by 900 इंटू 100. ओके, सो 0 0 कैंसल हो गया इधर इधर, है ना. अब 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, क्या हो रहा है ये 8 1 जा 8, 8%. सो the man had a profit of 8%. Profit of 8%. So let us move to the next question. This is the last question, children. So please see it properly. Move through this. Mr. Gupta purchases a house for ₹2,50,000. देखिए घर खरीदा गया, मिस्टर गुप्ता जो है उन्होंने घर खरीदा, उसका कॉस्ट ₹2,50,000 एंड स्पेंड्स ₹50,000 ऑन रिपेयर्स. अब घर खरीदा तो घर में बहुत सारे रिपेयरिंग रहता है ना, तो रिपेयरिंग करवाया 50,000 रुपीज में, तो अब कितना उसका मतलब उसके ऊपर खर्चा आ गया, घर के ऊपर कितना हो गया खर्चा, 2,50,000 और 50,000 मतलब 3 लाख रुपया खर्च करने के बाद उनको मिस्टर गुप्ता को सही ढंग का घर मिला. नाउ इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4 लाख, अब क्या किया इन्होंने, एक पुराना घर खरीदा, उसका डेंटिंग पेंटिंग करवा लिया 50,000 खर्च करके, और उसके बाद उसको 4 लाख में बेच दिया. अब हमको देखना है कि उसको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी ऑफ द हाउस परचेज्ड, जो घर खरीदा उसका सीपी क्या था, उसका सीपी था ₹2,50,000. अच्छा रुको, इसको ठीक से लिखा जाए.
थोड़ा सा, जस्ट वेट. is equal to rupees 2,50,000. Okay. Now spends rupees 50,000 on repairs. ठीक है. Amount spent on repairs. कितना है? रुपीज 50,000. ठीक है. नाउ टोटल कॉस्ट, पूरा घर के ऊपर कितना टोटल कॉस्ट आया? टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस. टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस कितना हो जाएगा? देखिए, जीरो ऐड करेंगे ना, क्योंकि 2,50,000 में घर खरीदा, उसके ऊपर 50,000 का खर्चा आया, तो घर ही के ऊपर में हो गया ना पूरा खर्चा. तो अब क्या हो गया? 0 0 0 0 5 5 10 0 1 3. सो कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 3 लाख रुपीस का घर हो गया. टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस इज नाउ 3 lakhs. नाउ कितना में सेल किया उन्होंने? 4 लाख में. सो सेलिंग प्राइस of the house equal to rupees 4 lakh. Now see what you are getting. You are getting selling price as 4 lakhs. Now see, SP is greater than CP here, isn't it? Here SP is 4 lakh and CP is 3 lakh. So profit is equal to how much? Profit will be equal to rupees 4 lakh minus rupees 3 lakhs. So you will be getting rupees 1 lakh. Okay. So profit percent will be equal to 1 lakh by, see here, 3 lakhs. 3 lakhs into 100. ठीक है. Now see, 1 lakh by 3 lakh जब लिखोगे तो 5 zeros 1 lakh में रहेंगे, वो 5 जीरो वहां कट जाएंगे, और 3 lakh में 5 जीरो रहेंगे, वो भी कट जाएंगे. तुम्हारे पास आ जाएगा 100 by 3%. इसका मतलब 33 1 by 3%. 33 1 by 3% क्या है? 33 1 by 3% is your profit, gain percent. So gain percent here is equal to 33 1 by 3%. So children, practice these sums. Okay. Thank you. We shall meet again with some more questions.